Namaskar, I'm Ashok Vyas. These days, wherever you are, you start learning about the political process of India, how many phases are over. Of course, we are looking forward to 4th June when formally we will know who is the Prime Minister of India. But the whole structure of political process is governed by one important body which is doing excellent job, but they are not talked about that much. And we are referring to Election Commission of India. But how Election Commission of India is acting? Is it acting as a referee? Is it acting as a school teacher? How it is monitoring? And such a huge task when they are successfully taking care of it, how things are taking shape. We'll learn about that with the help of two panelists that are joining us, Pramod Kumar Shaji and Raj Narji. Welcome. Namaste. Namaskar. Pramodji, you are joining from Kolkata, and before we start talking about Election Commission in general, there is a recent statement by West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee mentioning that the seven phase of polling is organized by Election Commission of India to help BJP. How do you feel about these kind of allegations as a layman? बात यह है कि अब वो क्यों कह रही है, वो ज़्यादा ठीक समझती हैं। उनको लगता है कि भाई इससे बीजेपी को फायदा होगा, पर एज ए लेमैन मुझे कभी समझ नहीं आता कि पोलिंग 5 चरण में हो कि 10 चरण में हो। यदि पोलिंग फेयर होनी होती है तो क्या फर्क पड़ता उससे? ये हो सकता है कि कम चरण में हो तो उसमें स्कोप कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है मैनेज करने का, ज़्यादा हो तो पुलिस ज़्यादा होती है, कम पड़ता है। चरण में गैप मिलता है ना, उसमें कई बातें ऐसी होती है जिसमें कई वक्तव्य नेताओं के ऐसे आते हैं, उसको आप बात घुमा करके पब्लिक का मूड चेंज कर देते हैं, या ऐसा वक्त मिल जाता है कि जिसमें कुछ ऐसी बातें विपक्ष के मुंह से निकल जाती है या सत्ताधारी को ऐसी बात कह देते हैं कि पब्लिक का मूड वोटों की तरफ उनका रुझान ज़्यादा हो जाता है। ये सब कारण होंगे, लेकिन एज ए लेमैन में सोचो से एक क्षण में कर सकते हो, एक में कर लो, 10 में कर लो। नहीं, मैं आपकी बात आपको वोट देना दे दो। अच्छा राजेंद्र जी, हम सीधे इलेक्शन कमीशन की वर्किंग के पर आए। उससे पहले राजेंद्र जी, जो राजनीतिक दल ऐसा महसूस करता है कि जिस तरह से इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, इसमें वो कहीं ना कहीं वीक फुटिंग पर है, तो वो कोई ना कोई आरोप लेकर आता है। सामान्यतः रहता है, जैसे ईवीएम मशीन के ऊपर भी काफी आरोप लगते रहे। और अब इसमें दूसरी वाली बात यह है कि आपने बॉल फेंकी, इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में गई तो एज इलेक्शन कमीशन आप क्या करें? इसके लिए क्या शक्ति इलेक्शन कमीशन के पास है, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करना प्रारंभ करें आपके साथ। तो देखिए, आपने ये बहुत अच्छा एक बनाया प्रारूप बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन कमिश्नर, तो थोड़ा बैकग्राउंड हमारे दर्शकों को दिया जाए, जिसमें 1950 से बना हुआ है। और ये जो इलेक्शन कमिश्नर के नेतृत्व में काम करता है, उसमें कई बातें आती रही हैं। सबसे अधिक चर्चा में रहे थे टीएन शेषन जी। राजेंद्र जी, आप कुछ बताएं जो इलेक्शन कमिश्नर की पावर्स हैं उसके बारे में। ऐसा है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है, एज फार एज द इलेक्शंस प्रोसेस इज कंसर्न, थ्रूआउट all the periods, because then it is during the elections they control so many things, but other than elections then they have to prepare for elections, which may be of the security, maybe electoral rolls and all other discussions which are happening which they control. So election commissioner that are composed of 3 election commissions, those who are there, they have almost 100% power of taking any decisions. Of even they can say that those can have the repoll
as number of booths is required. They can say that those parties, ban the parties from committing or fighting the elections. They decide. Recently, things have happened. They decide the symbol of the elections. So they decide each and everything, and all the collectors, district magistrates, commissioners report to election commissioner on the during the period of election commission. So they issue guidelines and they take care of everything. They recognize the political party. They de-recognize the political party. So election commissioner and this body of 3 election commissions, they have a almost authoritarian power in as far as the discussion. But at the same time, they can be challenged in Supreme Court later on. तो इसमें प्रमोद जी, एक तो ये हुआ कि मुझे महाराष्ट्र का केस याद आता है, वो शिवसेना में कि जब उनके वो विभाजन हुआ था कि भाई जो सिंबल है वो किसको दिया जाए और कौन सा सिंबल ठीक है कौन सा नहीं है। कांग्रेस ने अपने सिंबल चेंज किए, उसके चेंज नहीं किया, एक्चुअली कांग्रेस नहीं है ये तो इंदिरा जी वाली कांग्रेस है, अभी जो मूल कांग्रेस थी वो तो है ही नहीं। तो ये नया सिंबल है, वो पहले कुछ बैलगाड़ी क्या था कुछ उनका, फिर ये गाय बछड़ा भी था, गाय बछड़ा था। बैलगाड़ी बैल वाला भी था और फिर गाय बछड़ा वाला भी हुआ। और अभी पंजा है। तो ये जो पंजा है, ये हाथ कहते हैं, आपने उसको पंजा कह के आप बीजेपी पंजा ही कहते हैं, हाथ नहीं कहते, हाथ तो अच्छा पंजा है क्या, ठीक है। तो पंजा जो शब्द है इसके साथ तो कुछ अलग अलग प्रकार की बातें है, खूनी पंजा वगैरह फेमस अधिक रहे, जैसा जिसका भाव है वैसे होता है। अच्छा ठीक है, तो मेरे भाव की तरफ नहीं जाते हुए आपके भाव की तरफ चलते हैं प्रमोद जी। और ये जो इलेक्शन कमीशन है, इसके ऊपर बहुत सारी चीजों का दारोमदार रहता है, तो इसका जो कार्य है वो निष्पक्ष रहे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉलिटिकल इंटरफियरेंस है वो बहुत ज्यादा है कि नहीं है, ये किस तरह काम करता है, आपका एज ए लेमैन क्या इंप्रेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में? इलेक्शन कमीशन जितनी भी एजेंसियां है वो डिपेंड करती है कि जो आदमी कुर्सी पर बैठा है, चेयर पे, मेन आदमी, वो कितना स्ट्रोंग है। ये जो बिल्कुल सही कहा, 96 में उन्होंने तो पूरा सीन बदल, नर्स वालों ने कहा था कि आप राज्यपाल बन जाइए, अमेरिका में दूर राजदूत में चले जाइए, बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने तो पूरा ढांचा बदल दिया इलेक्शन का। तो आदमी बहुत पावर डिपेंड करता है, और कोई आदमी कंप्रोमाइजिंग होते कि मेहरबानी चाहिए सत्ता की हमको, तो नेचुरली वो कॉम्प्रोमाइज करेगा। ये बात इलेक्शन कमीशन के लिए, हर एजेंसी के लिए, हर पोस्ट के लिए है। और देखिए, कोई भी नियम बनता है, चाहे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो या किसी एजेंसी का नियम हो, हर नियम के एक तो उसकी बॉडी होती है, लेटर होता है, एक स्पिरिट होती है। तो दोनों में फॉलो होता है। खाली लेटर फॉलो कर लेंगे, स्पिरिट फॉलो नहीं करेंगे। खाली स्पिरिट फॉलो करेंगे तो दोनों फॉलो करने चाहिए, पहली बात तो ये। और फिर ये कंप्रोमाइज तो कहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है। उनका जो इंटरनेट कंप्रोमाइज कर रहा है फिलहाल, तो कभी कभी उनकी आवाज ठीक से आ नहीं पा रही है। पर राजेंद्र जी, ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के पीछे जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज धन का प्रयोग करते हैं, तो ये भी इलेक्शन कमीशन के रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि कोई जो उम्मीदवार है या कोई पार्टी है वो पैसे देकर वोटर्स को अपनी तरफ नहीं लाए, ये भी इंश्योर करना हो। अब ये अपने आप में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्पेस है। आपको अगर उस स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आप दिल्ली में बैठे हुए एक निर्वाचन आयोग के ऑफिस में बैठ के आप क्या कर सकते हैं? आपका क्या इंप्रेशन है मोटा मोटी, किस तरह ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में काम करता है? अलाउ मी टू ऐड ऑल्सो, और वो आपने मेंशन भी किया आगे जाके कि बहुत सारी शिकायतें आती है इलेक्शन कमीशन के पास में, उसमें इस तरह का शिकायत भी आती होगी कि भाई ये जो दूसरी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका जो उम्मीदवार है वो पैसे बांट रहा है, तो क्या करेगा इलेक्शन कमीशन? सो अशोक जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि जो बेसिकली इलेक्शन कमिश्नर जो है वो तो 3 लोगों का है, लेकिन एट एवरी स्टेट दे हैव देयर ऑफिसेस, बट आफ्टर ऑल द ग्राउंड पे द पार्टी दोज हु आर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, municipalities, now there is some
if you see that recent news that against OVC, the Madhavi Lata, that she has complained there lakhs of wrong electoral rules are there, those are not there. Now, Election Commission may say yes, they prepare, but who is there to check? The municipality, the district magistrate, the local persons. So, if anybody who can create an issue in fairness of election, to some extent, it can be only done under the state government bodies, not under the central bodies. Because from center, directly it goes to the states, and under the states is the district magistrate and IS officer and all those which are there. Thirdly, what you have talked about, that money power, so they are taking actions and they are stopping it, and that's why they are using the technology. This CVGIL, they have created an app. Through that app, anybody in India can at any time can anonymously give a complaint, and there are more than 400,000 complaints have been lost till now. Out of which 99.9 have been sorted out by Election Commission, and 88.7% has been sorted out within 100 minutes. So they have a power of that, and they are working on it. So I don't think there should be anybody in throughout the world. The type of fair and free elections we are having in India, no country, even in US, nobody matches that. With the use of technology, with use of the fairness and free from everything. Even then, there is always some, improvement. Our possibilities are there, and things are being. The system has to be as such which solves the problems. So you cannot have a problem-free system. You can only have a problem-solving system, and that is there in place, as far as I understand. तो जो प्रॉब्लम की बात निकल कर आती है, चाहे पॉलिटिकल रेफरेंस हो, चाहे लिटरेचर हो। लिटरेचर में मैं थोड़ा सा आपके साथ याद करूं, प्रमोद जी, जो चार्ली चैपलिन है, वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि उनका जो फॉर्मूला था टू क्रिएट द काइंड ऑफ फिल्म दैट ही डिड वाज टू पुट हिज कैरेक्टर्स इन द प्रॉब्लम्स एंड ब्रिंग देम आउट ऑफ द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन न केवल लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, बल्कि चैलेंजिंग भी बनाते हैं। और स्पेशली जब ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इस तरह से एक्सरसाइज किया जा रहा है, जैसे आज जब हम बात करें तो वाराणसी में उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे, और अभी पहले तेलंगाना का जिक्र हुआ था, तो वहां पर उन्होंने अपनी ओर से उम्मीदवार जो ओवैसी जी के विरोध में है, माधवी लता नाम है उनका, तो उन्होंने कुछ मुस्लिम महिलाओं की शिनाख्त पक्की करने के लिए उनका वो बुर्का उठाकर देखा, वो वीडियो है, तो उसको लेकर उनके खिलाफ कुछ कंप्लेंट वगैरह भी हो रही हैं। तो अब ये है कि इलेक्शन कमीशन के हजारों हाथ अलग अलग कर्मचारियों के रूप में रहते ही हैं, फिर भी ऐसा अपोजिशन में जो होता है उनका आरोप लेता है कि भाई इसमें जो सरकार है वो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से उसको ढाल रही है। अभी आपको क्या लगता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल जो आम लोगों में जो इंप्रेशन है इलेक्शन कमीशन का, उनको क्या लगता है, ये आरोप को लेकर वो थोड़ा संशय में आते हैं प्रमोद जी, या ठीक ठाक लगता है? इसके पहले आपने जो धन की बात कही थी, चर्चा करें धन की जी। उसमें क्या है कि पहली बात तो मान के चलना चाहिए कि धन लगता है, चुनाव में धन लगेगा। यदि आप फेयर अमाउंट पास नहीं करो तो 2 नंबर का पैसा लगेगा पैसा, चाहे कितनी बातें कर लो, लगता है। तो ये हमको एक प्रैक्टिकल देखना होगा, कितना रुपया लगता है उतना पास करना चाहिए, वरना चोरी से माल आएगा, सीधी सी बात है। और दूसरा लोग इतना फ्री, इतना लाख इसको, इतना हजार इसको दे देंगे, इसको फ्री दे देंगे, ये भी एक तरह की रिश्वत, वोट खरीदना एक तरह का ही है। तो इसमें भी सरकार को, सब पार्टियों को मिलकर सोचना चाहिए कि इस तरह में भी एक तरह की पैसा, हम इतना पैसा देंगे वोट का, तुमको इतना पैसा, बात तो एक ही हुई है। तो इस पे सोचना चाहिए, ठीक है ना? सही कह रहे हैं, ये सोचने की बात है। अच्छा, तो ये सोचने के लिए तो एक शेर है कि जिसका इलाज हो सके वो कोई दर्द ही नहीं,
जिसका इलाज हो सके वो कोई दर्द ही नहीं, जिसमें सुकून नसीब हो वो कोई जिंदगी नहीं। वाह, क्या बात, क्या बात। जिसमें सुकून, तो समस्या तो चलती नहीं चाहिए, शुरू से निकलनी चाहिए। हम्म, अब आपने वो आरोप प्रत्यारोप की बात कही पार्टियों की, तो देखिए हमारे राजनेता अपना विश्वास खो चुके हैं। कई बातें, हर बात कायदे कानून नियम में नहीं आती, चीजें चलती है नैतिकता से। कितने फैसले करेगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कितने फैसले करेगा चुनाव? क्या हमारा विवेक एकदम खत्म हो गया है क्या? अभी एक वकील, हमारे कोर्ट पॉलिटिकल केस इतने आ रहे हैं कि दूसरे केस कर नहीं पा रहे हैं। ये सारे काम कोर्ट को ही करने हैं, तो चुनाव क्यों करवा? तो कोर्ट को चलाना, कोर्ट चलाएगा देश को, आप क्यों चलाए देश को? ठीक है ना? तो कुछ हमारी नैतिकता भी है। यदि हर नेता, हर पार्टी का अपनी नैतिकता समझेगा तो फालतू के आरोप प्रत्यारोप बंद हो जाएंगे। लेकिन यह भी सही कि जो सत्ता में होता है, चाहे वो राज्य की सत्ता में हो, देश की, कुछ तो वो अपनी मनमानी करता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और लेकिन कितना सही कितना गलत, हर पार्टी को अपने विवेक से सोचना चाहिए। ये जो विवेक की बात लाए हैं राजेंद्र जी, इस दृष्टि से जब आप देखते हैं कि उम्मीदवार जो हैं उनके ऊपर कितने केसेस हैं, तो आपको लगता है बहुत सारे जो प्रूवन अपराधी टाइप के नेचर के लोग हैं वो संसद में बैठ जाते हैं, फिर वो नैतिकता की बात करते हैं तो वो कुछ अलग सी स्थिति हो जाती है। तो अब इसमें जो सेल्फ मॉनिटरिंग और चेक करने का संकेत जो प्रमोद जी ने किया है, उसमें इलेक्शन कमीशन का भी क्या कोई रोल हो सकता है कि वो जब कहें कि भाई किस किस तरह का जो उम्मीदवार है जो क्वालिफाई करता है इवन नामांकन पत्र फाइल करने के लिए, उसमें भी कुछ चेंज लाने के बारे में सोचना चाहिए? कि आपको क्या लगता है? इलेक्शन कमीशन ने कई बार कहा है, और जो एक कानून लागू हुआ है पहले कि जिसके पास 3 साल से ज्यादा की सजा के लिए जो कन्विक्टेड है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो कानून भी इलेक्शन कमीशन के जोर देने पर ही गवर्नमेंट ने रूल बनाया है। लेकिन अंततोगत्वा सरकार हैज टू मेक द लॉज, एंड द कई बार ये कहा जाता है अपोजिशन पार्टियों द्वारा कि आपने ये लॉ बनाइए, इस तरह का बनाइए। जैसे अभी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है कि कौन तय करेगा इलेक्शन कमीशन का नाम, इसके बारे में 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा कोई कानून बनाइए जिससे तय हो सके कि इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट कैसे हो, और सरकार ने कानून बनाया और उस कानून पे कंट्रोवर्सी हो रही है। पर अपोजिशन को मैं कहता हूं कि आप 50-55 साल तक तो आपने कानून क्यों नहीं बनाया? तब आपको चूंकि सुविधा थी कि आप अपने हिसाब से कर सकते थे, इसलिए आपने कानून नहीं बनाया। अब जब कोर्ट कह रही है तो उस कानून का वो भी एक डिस्कस करने का पॉइंट है कि वो कानून जो बनाया वो कितना सही है, कितना गलत है और किस प्रकार से है। लेकिन जहां तक इलेक्शन कमीशन हमेशा ये कहता है, और जैसा प्रमोद जी ने धन के बारे में कहा, उसके बारे में भी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कैसा कानून बनाया जाए और ऐसा तरीका निकाला जाए। और इलेक्शन रिफॉर्म्स पेंडिंग है, जमाने से पेंडिंग है, लाइक पुलिस रिफॉर्म्स, इलेक्शन रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स, जो मेन एग्जीक्यूटिव के जो और जुडिशरी के जो चीजें हैं वो अभी तक पेंडिंग है, और कोई भी सरकार हिम्मत नहीं कर पा रही है उनको आमूलचूल परिवर्तन लाने की। कोई पूरा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप पैसे की तनख्वाह, पैसा तो बढ़ा सकते हैं कि आज 50 लाख है, आप कर सकते हैं 50 करोड़ तक खर्च कर सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी जो खड़ा होना था 50 करोड़ लाएगा कहां से? लेवल प्लेइंग फील्ड कहां होगा? तो कुछ तरीका ऐसा होना चाहिए कि गरीब से गरीब आदमी जिसके पास एक भी पैसा नहीं है वो भी इलेक्शन लड़ सके और बिना पैसे के लड़ सके। अच्छा, ये जो बात कही एकदम, हाँ, ये एक ऐसी आदर्श बात प्रमोद जी ने कही, वो बिल्कुल असंभव है। वो बिना पैसे वाला तो रोटी से दूर तक जा ही नहीं पाता है। नहीं, संभव है अभी अशोक जी, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी है। आज समझिए कि इलेक्शन कमिश्नर एक यूट्यूब चैनल खड़ी करे हर एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, और उस पर हर जितने भी नेता, जितने भी वहां खड़े होते हैं मेंबर, उन सबको एक टाइम, इक्वल टाइम स्लॉट दे दे और उस लैंग्वेज में, और वो जाकर बोले और लोग सुने। तो क्या जरूरत है रैलियों की? क्या जरूरत है कि जाए? फिर भी कोई रैली करना चाहे तो करे। आज
मोबाइल सबके पास में है, नहीं मैं कह रहा हूँ नहीं, विचार नहीं, आपका अच्छा है, तो इसलिए मेरे को उसका प्रति विचार जो है उसको प्रस्तुत करने का उतावलापन ये हुआ कि जो एनर्जी बनती है ना रैली करते हुए, अभी देखिए जिस पैमाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रैली की, कितने राज्यों में गए, वो एक पर्सनल कनेक्ट बनता है। वो बंदा खुद आया था ऐसा एक वोटर के रूप में, जो मुझे एहसास उनके आने से होगा, वो यूट्यूब से नहीं होगा, ये बात है। अशोक जी, तो मैं आपसे इसमें विचार से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने देखा है इलेक्शन जहां हर आदमी एक एक घर घर जाता था, एनर्जी उससे बनती है। हाथ हिलाने से और हाथ सुनने से और पुष्प फेंकने से एनर्जी नहीं बनती है। प्रमोद जी, हम दोनों के जो असहमति है इसके बारे में आपका क्या विचार है? आप जज की तरह बताइए, एनर्जी कैसे कैसे बनती है? कोई टीवी पर आ रहा है, अपने विचार व्यक्त कर रहा है, यूट्यूब पे आ रहा है, उससे एनर्जी बनेगी, या आपने उसको रूबरू देखा और 50,000 जो भी लोग इकट्ठा हुए, वो एक माहौल तो इस तरह लाइव जो बनता है। कोई शादी नहीं है ना। नहीं नहीं, आपकी मेरी बात खत्म हो गई, अब जज के रूप में प्रमोद जी। मेरी उसमें बात में जोड़ी है, पहले जज वो करे, उसके पहले मैं मेरी दलील पूरी कर लूं। हाँ ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ यूट्यूब के अलावा हर आदमी घर घर जाकर के बात करे, और 14 दिन ही बात क्यों करे, 5 साल होते हैं उसके पास में, 5 साल तक तैयारी करे और उसके बाद में यूट्यूब पर बात करे तो सब सुनेंगे उसकी बात। तो ये तो 5 साल काम कौन करेगा? वो उसमें काम तो कर रहा है ना, नेता है, तो आप क्या बात कर रहे हैं? तो काम है ही उसका ये कि लोगों की जाके सुने, उनसे अरे मिले, तकलीफ लाए। जब एमपी बन रहा है तो लोकसभा तो 50-100 दिन चलती है, 365 दिन है उसके पास में, बाकी 265 दिन सुने लोगों के घर घर जाकर के, और 100 दिन बोले लोकसभा में। चलिए, तो राजेंद्र जी आप बहुत अच्छे वकील हैं, लेकिन फिर मुझे भी कंक्लूडिंग रिमार्क अपना ये कहना पड़ेगा कि एक तरफ वो टेक्नोलॉजी के यूज की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो घर घर जाए, तो वो कहेगा मैं समस्या के समाधान भी टेक्नोलॉजी से करूंगा। तो इसलिए वो बात अपनी जगह पर है, और कर भी रहे हैं ऐप वगैरह के द्वारा। घर तो में अभी हमने खुद ही कहा, इलेक्शन कमीशन खुद कर रहा है ऐप के द्वारा समस्याओं का समाधान। आज की टेक्नोलॉजी में वो संभव है। देखिए, अब मौका जज साहब का। जी। जो बात हो रही है ना, तो हम जिस दौर में जी रहे हैं वहां प्रोसेस का इतना महत्व नहीं है कि आप किस प्रोसेस से आ रहे हो, लास्ट में आप कैसे मैनेज करके निकल जाते हो, जमाना वो है। झूठ वाले कहां के कहां बढ़ गए, और मैं था कि सच बोलता रह गया। हम्म। रात मुस्लिम थी, दामन बचा ले गई, और दिन गवाहों की सफ में खड़ा रह गया। क्या बात है, क्या बात है। तो जमाना देखिए, पहले जैसी राजा वैसी प्रजा, अब प्रजा तो जैसी प्रजा वैसा राजा। कोई हमारे धर्म की बड़ाई कर देता हम खुश हो जाते हैं, कोई बुराई कर देता है उसके खिलाफ चले जाते हैं, कोई हमारी जाति की, भाषा की, प्रांत की बड़ाई करता है हम उसको वोट दे देते हैं। ज्यादा नाराज नहीं देती है, तो हमारा क्राइटेरिया है। किस विकास और किस डेमोक्रेसी की बात करते हैं हम? उनको पता है कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे पूरे वोट घूम जाएगा। तो सारी शैली बदल गई है साहब। तो ये बदली हुई शैली में समापन की तरफ बढ़ेंगे तो मुझे अपने केजरीवाल जी को याद किए बिना काम चलेगा नहीं। आपने झूठ कहा तो कई लोग कहते हैं वो झूठ बोलने में उन्होंने बड़े पीएचडी कर रखी है, या समझिए कोई अपनी बात से पलटता है उसको हम झूठ कह देते हैं। लेकिन एक रोचक बात ये हुई कि वो आते ही कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि वो 75 साल के होंगे तो रिटायर हो जाएंगे पॉलिटिकल पार्टी से। तो उनके जो आरोप प्रत्यारोप चले, पर मुख्य तत्व ये है जिस पे मैं आना चाहता हूँ राजेंद्र जी आपके साथ, कि वो उनको छोड़ने के पीछे ये हुआ आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस में आगे पार्टिसिपेट करेंगे। अब चूंकि हम इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है इलेक्शन कमीशन का भी कुछ से होना चाहिए क्या था कि पहले तो वो मुख्यमंत्री जेल में से सरकार चला रहे, वो भी एक अनहोनी सी बात है साहब। मैं तो सोच नहीं सकता था मैं सोच नहीं सकता था, क्योंकि हम नैतिकता की बात कर रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि ये प्रासंगिक है कि एक मनुष्य जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, जो आरोपों को लेकर जेल के पीछे है, अब वो आपको क्या नैतिकता पढ़ाएगा शीर्ष से होके राजेंद्र जी? देखिए, ये
एक अनहोनी घटना है जो केजरीवाल जी ने पैदा कर दी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हाँ भर दी। पहले तो देखिए कि किसी आदमी पर अगर कोई इल्जाम लगा है कि उसने गलत नीतियां बनाई और उसमें करप्शन के चार्जेस है अगर, और वो अगर चीफ मिनिस्टर रहे, चाहे वो और चीफ मिनिस्टर का काम भी करे जेल में बैठ करके, तो फिर उसको अरेस्ट करने का कोई अर्थ ही नहीं रहता है। अरेस्ट इसलिए किया जाता है कि वो गवाहों को और रिकॉर्ड्स को चेंज नहीं कर पाए। अगर वो चीफ मिनिस्टर रहेगा और जेल में रहेगा तो उसका तो जो अथॉरिटी वो रहेगी और वो सब कुछ कर सकता है। गवाहों को बदलने के लिए, जाने के लिए पर्सनली जाने की जरूरत नहीं है। एक आदमी की अपनी एक पावर होती है, एक मैसेज भेजता है, उससे भी काम हो सकता है। दूसरा, ये जो उन्होंने लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि वो इलेक्शन कैंपेन करने के लिए, तो ये तो ऐसा हो गया है कि एक नेता के लिए एक अलग कानून है और एक आम आदमी के लिए अलग कानून है। और नेता के लिए भी आज हेमंत सोरेन कह सकते हैं मुझे इलेक्शन कमीशन जाना है। आज जो लोग ऐसे भी हैं, एक पंजाब में एक आतंकवादी जिसको आतंकवादी के चार्ज में जो जेल में है, वो इलेक्शन लड़ रहा है, वो बोला मेरा इलेक्शन कैंपेन मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स जिसे कहते हैं वो खोल दिया है। और मेरे को लगता है कि जो भी सरकार नई आए उसको इस बारे में सोचकर एक ऐसा कानून बनाना चाहिए ताकि इस प्रकार की स्वतंत्रता जुडिशरी ना ले। जुडिशरी को भी समझना चाहिए कि वो एक स्तंभ है प्रजातंत्र का, सारे स्तंभ जुडिशरी नहीं है। एक पार्लियामेंट अलग स्तंभ है, एग्जीक्यूटिव अलग स्तंभ है और जुडिशरी अलग स्तंभ है। जुडिशरी जैसे पॉलिटिशियंस को अपनी सीमा में रहना चाहिए, एग्जीक्यूटिव को अपनी सीमा में रहना चाहिए, जुडिशरी को भी अपनी सीमा तय करनी चाहिए। मनमाने ढंग से इंटरप्रिटेशन देने लगेंगे तो नए कानून तो वहीं बनने लगेंगे कोर्ट में, फिर तो पार्लियामेंट की जरूरत क्या है कानून बनाने की। तो राजेंद्र जी जो फ्री और फेयर की बात की है और अपनी सीमाओं का ध्यान रखने वाली बात की है प्रमोद जी, तो आपके पास सिर्फ 1 मिनट है। आपको लगता है कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और मैं बताना चाहता हूँ हमारे कई दर्शकों को पता भी नहीं होगा कि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो राजीव कुमार जी हैं और 15 मई 2022 से वो इस पद पर कार्यरत हैं। तो ये 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। उनको अगर कुछ सुझाव देना हो आपको तो 30 सेकंड में आप क्या देंगे, या उनकी तारीफ ही कर सकते हैं आप, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका थैंकलेस जॉब तो नहीं, लेकिन जितना थैंक्स उनकी तरफ जाना चाहिए उतना जाता नहीं है। प्रमोद जी आपकी तरफ से। कि जिस तरह नेता लोग बिहेव कर रहे हैं हर पार्टी के, आम आदमी थक गया, उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता है, कोर्ट भी थक गया है, उनकी बातों पे सुमोटो नहीं लेता है, और चुनाव आयोग भी थक गया है। तो जो कर रहे चुनाव आयोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, काबिल तारीफ है। इतने बड़े देश का डेमोक्रेटिक वे में संभालना बहुत मुश्किल काम है और हजारों शिकायतें रोजाना आती है, टैकल करना वाकई इनको सल्यूट किया जा सकता है, ये बधाई के पात्र हैं। और उन्होंने बताया कितनी लाखों शिकायतों को रिजॉल्व कर चुके हैं। हाँ जी, हाँ, एक शेर से समापन। पूरे माहौल को अकबेला का शेर है जी कि हर एक का जहां में अरमा निकल रहा है, हर एक का जहां में अरमा निकल रहा है, तोपे भी चल रही है, जूता भी चल रहा है। पूरा माहौल समझ जाइए आप। तो अब देखिए डेमोक्रेसी आगे चले, इसके लिए कई चीजें एक साथ चल रही हैं। वो कहाँ तक पहुंचेंगी 4 जून को होगा पता लगेगा। और राजेंद्र जी का धन्यवाद है, प्रमोद जी का धन्यवाद है, और आप सबके साथ हम धन्यवाद पहुंचा रहे हैं सामूहिक रूप से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, क्योंकि काफी चुनौतीपूर्ण काम है। ये बड़े बड़े नेता जो है बच्चे की तरह जब व्यवहार कर रहे होते हैं तो उनको संभालना, उनकी ईगो को संभालना, कोई व्यवस्था को संभालना आसान काम नहीं है। तो बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। नमस्कार।